In the previous video, we tried to prove the language of the DFA. This is the DFA. The name of the DFA is M, and it accepts all those strings whose, when divided by 3, leaves the remainder 1. So all the binary strings are such that. So although we have made in that way, but we are not 100% sure that it will accept all such strings and all such strings whose numerical value when divided by 3 leaves remainder 1. But we are not very sure whether all such strings are accepted or no extra string is accepted. So just to confirm that, we need to go with the proof. So what we tried, that we have taken a language L of M, which is the strings that are accepted by this machine, and then we have taken another language L, which is the set of binary strings which are when divided by 3 gives you remainder 1. To prove this, we have to prove the two parts, that is L of M is a subset of L and L is a subset of L of M. Now when we started with the way we earlier started, we took only the first part and started with the mathematical induction on the length of the string. We started with the taking L of M. So the definition of L of M converts into the, when we change it into an implication sign, so X belongs to L of M implies X belongs to L, which actually turned into this one. Delta hat Q naught omega is an F. So we start with Q0 consuming the entire string omega. If we reach to one final state, one of the final states, implies that W, the numerical value of W, when divided by 3 gives you 1, gives you remainder 1. So we need to prove this because this is how we started earlier. Now the base condition, we have to prove IW for W equals to epsilon string, empty string. So we saw that yes, delta hat Q naught epsilon is not in F because it is Q1, which is not Q1 is the final state, but this comes out to be Q naught. This comes out to be Q naught. So Q naught is not equals to Q1 and hence it is false. So Q naught is not equals to Q1 and hence it is false. So next we found that okay, since the premise is false, this premise is false, so we need not to check the consequence, the statement is true. Okay. Then we assumed the inductive hypothesis that IW is true for all W with length shorter or maximum L. Now to go ahead with the mathematical induction, we have to prove it for IW, wherein the length of W is L plus 1. So we converted this W into X concatenated with A, where A is a symbol and X is the string. So definitely the length of the, since length of the string W is L plus 1, so the length of X has to be L. Now since that is what we see, we started with the condition part or the premise part. So we took this delta hat Q naught omega is in F. Now since W can be replaced by X dot A, and delta hat can be replaced by its recursive definition, we got this expression. Now to get this expression, we need to reach to Q1. So we saw that we can reach to Q1 via two different paths. This is one path and this is another path. ये दोनों पाथ से हम Q1 को रीच कर सकते हैं, यानी कि Q0 से 1 लेंगे
तो हम Q1 पे पहुंच सकते हैं, या Q2 से 0 लेंगे तो हम Q1 पर पहुंच सकते हैं। तो हमने कहा कि हम केस 1 की बात करते हैं, क्योंकि हमें तो दोनों ही केसेस लेने पड़ेंगे। जब हमने पहला केस लिया, पहला केस ये था कि Q0 से स्टार्ट करना और 1 लिया, सो विच मीन्स this portion has to be Q1. This has to be Q1, and this A needs to be 1. This is for case 1. So we wrote this. This has to be Q0, because this Q0, after reaching to Q0 with X, you reach to Q0 and then take A to reach Q1 and then take 1 to reach Q1. So this everything has to be delta hat Q naught X has to be Q0 and A has to be 1. Now, to say anything about XA, we should know something about X. Now, if we are starting from Q0, consuming the entire string X, we reach to Q0. What property we have? We have not stated it as of now. What we started with the thing that Q0, if we reach to, from starting Q0, consuming X, if we reach to Q1, that is the final state, then the numerical value when divided by 3 leaves the remainder 1. But we do not have any such condition when it divides or when it takes you to Q0. Now, in such a case, we do not have any property related to X. Now, since we do not have any property related to X, we cannot say anything about X dot A. And because of this simple reason, this argument stuck, because we do not have any property about X. So saying anything about appended 1 is difficult. We cannot say anything because we do not know the property of X. What is the X, and what will happen if I append 1 to this X. हम यदि 1 अपेंड कर देंगे इस X में तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। और इस कारण से ये प्रूफ की जो लाइन है यहीं पर क्लोज हो जाती है। यदि हम केस 2 लेंगे तो हमें Q2 के लिए हमें बात करनी पड़ेगी कि Q2 की क्या प्रॉपर्टी है, और फिर से हम वहीं फंस जाएंगे। इसके चलते हम इस प्रूफ को आगे नहीं बढ़ा रहे। अब हम दूसरा तरीका देखने जा रहे हैं जो कि हमारा काम करेगा ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आप देखते हैं कि क्या वो काम करता है। हम अगले प्रूफ में जो इस बार हम प्रूव करने जा रहे थे उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट या उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार देखते हैं कि हम क्या स्ट्रॉन्ग कंडीशन प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने दो कंडीशन ली थी, L M सबसेट ऑफ L और and L is a subset of L of L. Now we are going to prove something different. Now let's talk again about the machines. Okay, so let's see it, how it looks like. Now what we will do, since we have already seen that the language of the machine is like this, that for whatever जो भी आपकी बाइनरी स्ट्रिंग है Q0 से शुरू करके आपने ट्रांजिट करते चले गए, और यदि आप किसी फाइनल स्टेट में पहुंच गए तो ये लैंग्वेज ऑफ मशीन का पार्ट होगी। ओके, अब हमें, जैसा कि हमने अभी पिछली बार भी किया था, कि हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है। इन दो चीजों को हमने और सिंप्लीफाइड करके लिखने की कोशिश की, तो हम पहुंच गए यहां पर कि डेल्टा हैट Q नॉट ओमेगा, यानी कि Q नॉट से शुरू करके ओमेगा को पूरी तरह से कंज्यूम करते हुए यदि आप किसी फाइनल स्टेट में पहुंचते हैं, तब
न्यूमेरिकल वैल्यू जो ओमेगा की है उसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसको हम और थोड़ा सा कॉन्क्रीटाइज कर देंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं IW और फर्स्ट W, वट एवर यू वांट टू से। हम इसको जस्ट कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं और थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। सो वी से डेल्टा हैट Q नॉट ओमेगा। नाउ F में फाइनल स्टेट्स में सिर्फ Q1 है, फाइनल स्टेट्स में सिर्फ Q1 है, आप देख सकते हैं फाइनल स्टेट में सिर्फ Q1 है, तो हम यहां पर लिखेंगे Q1। So this whole implies omega modulo 3 equals 1. So ultimately we need to prove, अभी हमें IW के लिए तो हमें इस चीज को प्रूव करना, इस चीज को प्रूव करना। सेकेंड W के लिए या इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है? इसके लिए हमें कुछ ऐसा प्रूव करना है कि हम सबसे पहले तो इसको कॉन्ट्रापोजिटिव में ले जाते हैं, जिसका मतलब हुआ कि यदि W लैंग्वेज में नहीं है, मशीन की लैंग्वेज में नहीं है, तो W L में भी नहीं होगा, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जब डिवाइड करेंगे 3 से तो उसका रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा। तो इसको जब हमने लिखना चाहा, क्योंकि F में 2 स्टेट्स नहीं है, Q0 भी नहीं है और Q2 भी नहीं है। अब यदि हम देखते हैं कि यदि Q नॉट ओमेगा से हम F में नहीं पहुंच रहे हैं तो ओमेगा L में नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा हेड Q नॉट ओमेगा, यानी कि Q नॉट से शुरू करके ओमेगा को कंज्यूम करके या तो आप Q0 पे पहुंचे, क्योंकि F पे नहीं पहुंचना है और F में Q1 है तो Q1 पे नहीं पहुंचना है, बाकी सारी स्टेट से पहुंच सकते हैं, या तो Q0 पे पहुंचे या तो Q2 पे पहुंचे, तब ओमेगा L में नहीं होगा। और इस ओमेगा के L में ना होने का जो रीजन है या जो मतलब है उसको हम दोबारा से लिख लेते हैं कि ये चीज L में नहीं है। इसका मतलब है कि ओमेगा मॉड्यूलो 3 ये 1 नहीं होगा। 1 नहीं होगा तो क्या होगा? 1 नहीं होगा तो ओमेगा मॉड्यूलो 3 या तो 0 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, इन दोनों में से कोई सी एक चीज हो सकती है। तो हमारे पास में 2 कंडीशन, मतलब एक तरीके से कंडीशन बनती है कि स्टार्ट करते हुए, यानी कि Q नॉट से शुरू करके ओमेगा कंज्यूम करते हुए या तो Q0 पे पहुंचे या Q2 पे पहुंचे, तब ओमेगा का 3 से रिमाइंडर देने के बाद में या तो 0 आएगा या तो 2 आएगा। अब हम इसको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कंडीशंस के ऊपर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हमारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस क्या हैं? लेट्स सी देम। हमारी स्ट्रिक्टर कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि हम प्रूव करेंगे P1W, यानी कि यदि Q0 पे पहुंचते हैं, Q0 से स्टार्ट करके ओमेगा पूरी तरह से कंज्यूम करके यदि आप Q0 पे पहुंचते हैं तो ओमेगा मॉड्यूलो 3 0 आएगा। यदि Q0 से स्टार्ट करके ओमेगा कंज्यूम करके Q1 पे पहुंचते हैं तो मॉड्यूलो 3 करके 1 आएगा, और Q0 से स्टार्ट करके W कंज्यूम करते हुए Q2 पे पहुंचते हैं तो ओमेगा मॉड्यूलो 3 2 आएगा। ये हम तीनों को एक साथ प्रूव करेंगे, और चूंकि हम तीनों को एक साथ प्रूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये और में था, अब हम इसको एंड में बदलने जा रहे हैं। ये ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। ये कई केसेस में हो सकती है, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन के कंपैरिजन में ये 2 कंडीशंस ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। यहाँ पे कहा गया कि या तो Q0 से स्टार्ट करके ओमेगा को कंज्यूम करते आप Q0 पे पहुंचे या Q2 पे पहुंचे, तब ओमेगा मॉड्यूलो 3 या तो 1 नहीं होगा, यानी कि ओमेगा मॉड्यूलो 3 या तो 0 होगा या तो 2 होगा। तो आप Q0 से करते हुए आप 2 पर भी पहुंच सकते हो और Q2 से करते हुए आप 0 पे भी पहुंच सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि Q0 से करते हुए आपको 0 पे ही पहुंचना है, Q2 से करते हुए आपको 2 पर ही पहुंचना है। इसलिए इसको स्ट्रिक्ट कंडीशन कहा जाता है या स्ट्रॉन्गर कंडीशन कहा जाता है। सो वी आर गोइंग टू प्रूव
to prove stronger condition, stronger or stricter condition. So ये रीजन है, मतलब अब हमें आपको इसका रीजन समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं. So okay, let me take it to the next page as well. तो अब हम इन स्ट्रिक्ट कंडीशन को प्रूव करने जा रहे हैं. सो इस स्ट्रिक्ट कंडीशन को प्रूव करते हुए हम बेसिकली क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अब हमारा जो स्टेटमेंट है वो है P2W which is representing P1W and P2W and P3W. सो अब हम इस प्रपोजिशन को प्रूव करने जा रहे हैं. क्या है प्रपोजिशन? दैट दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट, तो ये तीनों स्टेटमेंट हम एक साथ प्रूव करने जा रहे हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम बेस मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे और मैथमेटिकल इंडक्शन चलेगा लेंथ ऑफ ओमेगा पर. सो बेस कंडीशन, सो वी विल prove PW with the help of mathematical induction on length of string. Okay, base condition. बेस कंडीशन में क्या होगा, जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0 होगी या फिर ओमेगा एम्प्टी स्ट्रिंग होगा. हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है P ऑफ एप्सिलॉन. P ऑफ एप्सिलॉन प्रूव करते ही हमको क्या करना होगा, हमें कहना होगा P1 ऑफ एप्सिलॉन इज, ये भी ट्रू है, P2 ऑफ एप्सिलॉन भी ट्रू है और P3 ऑफ एप्सिलॉन भी ट्रू है. अब आप इन तीनों कंडीशन में देख सकते हैं कि यदि आप यहाँ पर एप्सिलॉन रखेंगे तो प्रीमाइस ट्रू आएगी, अदरवाइज यहाँ पर भी फॉल्स आएगी, यहाँ पर भी फॉल्स आएगी. तो चूंकि यहाँ पर इन दोनों केसेस में फॉल्स आएगी प्रीमाइस, तो हमारा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, यानी कि P2 और P3 दोनों ट्रू हो जाएंगे. लेकिन P1 के ट्रू होने के लिए हमें इस पार्ट को चेक करना होगा. तो अब हम देखते हैं कि P1 ट्रू है कि नहीं. तो P1 का प्रीमाइस तो ट्रू हो गया, क्योंकि P1 एप्सिलॉन, P1 में एप्सिलॉन यदि हम रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, डेल्टा हैट Q नॉट एप्सिलॉन. नाउ ये जो चीज है ये आपकी Q नॉट ही आ रही है. सो ये क्या है, ये ट्रू है. अब यदि ये ट्रू है तो हमें देखना है कि क्या एप्सिलॉन मॉड्यूलो 3 0 आता है. तो हाँ, हम जानते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग को 0 को इक्विवेलेंट माना जाता है और इसलिए मॉड्यूलो 3 भी 0 आएगा. सो दिस इज ट्रू. ओके, एप्सिलॉन के लिए बाकी दोनों कंडीशंस में फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि Q नॉट एप्सिलॉन डेल्टा हैट Q नॉट एप्सिलॉन, ये Q नॉट आएगा, डेल्टा हैट Q नॉट एप्सिलॉन, ये भी Q नॉट आएगा. Q नॉट Q1 के बराबर भी नहीं होगा, Q नॉट Q2 के बराबर भी नहीं होगा, इसलिए ये दोनों प्रीमाइसेस फॉल्स हो जाएंगी. फॉल्स होने के बाद में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं दे पाएंगे, मतलब इसको चूंकि प्रीमाइस फॉल्स हो गई तो हमें कॉन्सिक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है देखने की, स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, लेट्स गो टू द इंडक्टिव हाइपोथेसिस. इंडक्टिव हाइपोथेसिस सेज, इस यहाँ पर क्या है, हम ये कह रहे हैं कि PW is true for all strings for all binary strings omega, so up to length L. So ये सब ट्रू है, PW जो है वो ट्रू है. अब हमें क्या करना है, हमें PW+1 के लिए इसे प्रूव करना है. नाउ वी हैव टू प्रूव इट फॉर PW+1. Now prove for PW where the length of W is L+1.
यदि हम लेंथ ऑफ W L+1 ले लेते हैं तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि W जो है वो x डॉट a है। यदि x डॉट a है तो x की जो लेंथ होगी वो L होगी। x की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? L होगी, एट मोस्ट L। सो एग्जैक्टली L इन फैक्ट, क्योंकि a जो है वो एक सिंगल अल्फाबेट सिंगल सिंबल है तो x की लेंथ हमारी L रह जाएगी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास में वही 3 कंडीशन है। हम एक बार दोबारा से उस कंडीशंस को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर कट रहे। ओके, वापस इसे कॉपी कर लिया। अब हम एक बार देखते हैं कि क्या हम L+1 के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो हम जब L+1 के लिए प्रूव करने जाएंगे तो अब हमें अपनी मशीन की जरूरत भी पड़ेगी। तो लेट्स टेक अगेन दिस मशीन एज वेल। ओके, हमने मशीन भी ले ली। हाँ, अब पहले स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम सिर्फ उन कंडीशंस को देखेंगे जिनमें हमारी प्रीमाइस ट्रू है। हमारी प्रीमाइस ट्रू कहाँ पर है? जब हम Q0 में पहुंच रहे हैं, W से हम Q0 में पहुंच रहे हैं। तो अब ये देखिए कि हमने डेल्टा हैट लिया, Q0 ओमेगा, विच इज, अब क्या है कि चूंकि Q0 को हम मान के चुके हैं, W को हम मान के चुके हैं कि वो x डॉट a है, तो हम इसको x डॉट a लिखेंगे। और अब चूंकि हमें पता है कि डेल्टा हैट की भी एक अपनी एक्सपेंशन है रिकर्सिव डेफिनेशन के कारण से, इसलिए हम उस एक्सपेंशन को यहाँ पर लिख देंगे ताकि हमें x के बाद जो हमें स्टेट मिलेगी वो मिल जाए और उसके बाद हम a को कंज्यूम करेंगे और जहां पर भी पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे। इस कंडीशन या इस चीज को देखते हुए अब हम वापस से इन तीनों कंडीशंस की जगह यहाँ पर इन तीनों कंडीशंस में इस पार्ट की जगह हम इसको रख लेते हैं। अब पहला वाला कहता है कि ये Q0 के बराबर होना चाहिए, ये पार्ट जो है ये Q0 के बराबर होना चाहिए। दिस इज व्हाट दिस P1W, ये P1W ये कह रहा है। अब Q0 कब हो सकता है? तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट 1। सो दिस इज P1W, हम P1W को डिस्कस कर रहे हैं। P1W को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि ये दिस हैज टू बी Q0। ये Q0 कब होगा? ये Q0 कब हो सकता है? Q0 पे हम दो तरीके से पहुंच सकते हैं, या तो Q0 पे ही होते हुए हमको 0 मिल जाए, या हम पे Q1 पे हैं और फिर हमें 1 मिल जाए। ओके, हम दो केस ले लेते हैं। केस 1, डेल्टा हैट Q0 x इज Q0 और a जो है वो 1 है, ठीक है। और केस 2 क्या है हमारे पास में? केस 2 है, क्योंकि Q0 पे हम दो तरीके से पहुंच पा रहे हैं, Q0 से 0 लेके या Q1 से 1 लेके। केस 2 है डेल्टा हैट Q0 x, ये आपका Q1 है और उसके बाद हमें 1 मिल गया है, a जो है 1 है। ये हमारे पास दो केसेस हैं जिनको हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि x पर हमारी स्टेटमेंट्स हमको पता है कि हमने वो अज्यूम कर लिए हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस के चक्कर में या हाइपोथेसिस के कारण से हम इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अप टू लेंथ L दिस इज ऑल ट्रू, p omega is true, that is p1 is true as well as p2 is true as well as p3 is true for all omega up to length L। ठीक है, तो यदि आप Q0 में पहुंच रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ओमेगा मॉड्यूलो 3 0 है। तो यहां पर हमें ये मालूम पड़ गया कि x की जो प्रॉपर्टी है x मॉड्यूलो 3 जो है वो 0 है, ठीक है। अब x मॉड्यूलो 3 यदि 0 है और उसमें आप अपेंड कर रहे हो 1 को,
तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप 2 into 0, क्योंकि यदि हम एक चीज अपेंड कर रहे हैं, एक बाइनरी बिट अपेंड कर रहे हैं, तो अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी? तो शिफ्टिंग है, तो हमने जो मॉड्यूलो वाली वैल्यू ली है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो नई चीज अपेंड हुई है उसको सम कर दिया। अब यदि इसका मॉड्यूलो 3 वापस से लेते हैं तो बताइए कितना आएगा? इसका मॉड्यूलो 3 लेंगे तो ये 1 आएगा, राइट? ओके। और ओके, सो आई थिंक हमने एक गलती कर दी है कि ये A1 नहीं होना चाहिए, A0 होना चाहिए। ओके, यदि ये 0 होना चाहिए तो यहाँ पर 0 आएगा और ये मॉड्यूलो 3 0 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि ये ठीक है। हमने कहा कि ये Q0 में जा रहा है, ठीक है, अल्टीमेटली, क्योंकि केस 1 ये कहता है कि यदि आप Q0 होंगे और यदि 0 रिसीव करेंगे, Q0 में होंगे, 0 रिसीव करेंगे तो 0 में पहुंच जाएंगे, Q0 में पहुंच जाएंगे। और हमने देखा कि जो पिछली स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, क्योंकि आप Q0 में पहुंच रहे हो, x से आप Q0 में पहुंच रहे हो, इसलिए उसको ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि x की लेंथ अप टू L ही है, उसको ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया x मॉड्यूलो 3 मुझे पता है कि वो 0 है। तो अब चूंकि हम अपेंड कर रहे हैं, तो अपेंड करते वक्त क्या करते हैं, हमें एक लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब हम पूरी स्ट्रिंग जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद में अपेंड कर रहे हैं 0 को, तो +0। सो बेसिकली इसको और थोड़ा यदि अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा ये 2 टाइम्स x मॉड्यूलो 3 प्लस a, क्योंकि अपेंड जब आप करते हैं तो इसका मतलब यही होता है। तो यदि हम इसका दोबारा से मॉड्यूलो लेंगे, a चूंकि 0 है, a चूंकि 0 है, x मॉड्यूलो 3 भी 0 है, तो ये 0 ही आएगा। तो हमें पता लगा कि ऐसा होने पर भी हमारा जो टोटल ओमेगा है, ओमेगा मॉड्यूलो 3 0 आ रहा है। इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो हमने देखा कि यदि हम ओमेगा को कंज्यूम करके Q0 पर पहुंचते हैं, ठीक है, P1W यही कहता है कि ओमेगा को यूज करते हुए Q0 से स्टार्ट करके Q0 पर पहुंचते हैं, तब ओमेगा मॉड्यूलो 3 0 होगा, और हमने पाया भी वही, ठीक है। तो एक चीज आपकी प्रूफ हो गई। केस 2 क्या है? केस 2 ये है कि Q0 से x लेकर के आप Q1 पे पहुंचिए। सबसे पहले आप Q1 पर पहुंचिए। Q1 पे पहुंचने के बाद में 1 लीजिए और 1 लेकर के आप Q0 पे पहुंच जाएंगे। ओके, अब चूंकि x की लेंथ अप टू L है, तो इसमें हमारी ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी इंडक्टिव हाइपोथेसिस की मदद से। अब चूंकि Q1 ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तो हमारी ये कंडीशंस एक्चुअली इसके जैसी है, तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी जिसमें प्रीमाइस ट्रू होगी। अदरवाइज दो कंडीशंस की प्रीमाइस ट्रू नहीं होगी, इसलिए वो दोनों कंडीशंस वैसे ही ट्रू हो जाएंगी। इस कंडीशन की चूंकि प्रीमाइस ट्रू है, इसलिए हमें इसका कॉन्सिक्वेंस भी ट्रू करना होगा। यानी कि यदि हमने यहाँ पर शुरू किया है, तो हमें x की एक प्रॉपर्टी मिलती है, ये मिलती है कि x मॉड्यूलो 3 ये 1 आ रहा है। क्योंकि आपने अपेंड किया है 1, तो हमारा इसकी वैल्यू बन जाती है 2x मॉड्यूलो 3 प्लस a, विच इज, जो कि क्या बना, 2 into 1 प्लस 1, जो कि बना 3। और यदि 3 मॉड्यूलो 3 करेंगे तो ये आया 0। तो अब हम फिर से देख पा रहे हैं कि हमने ये केस, सेकंड केस भी जो डिस्कस किया, उससे भी हम वापस से W मॉड्यूलो 3 ओमेगा मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी P1W कंप्लीटली ट्रू हो गई है। सही, आप केस 1 लो चाहे केस 2 लो, क्योंकि अब किसी भी और केस में, किसी भी और ट्रांजिशन से हम Q0 पे नहीं पहुंच सकते, हमें Q0 पे पहुंचना है
यानी कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग लेकर के यदि इस तरीके से Q0 पे पहुंचना है, ये तो एक स्टेट है, ये एक सिंगल एक स्टेट है, ठीक है। इस स्टेट से शुरू करके ए को कंज्यूम करते हुए यदि हम एक पर्टिकुलर मतलब यदि हम Q0 पे पहुंचते हैं तभी हम प्रीमाइस को ट्रू कर पाएंगे, अदरवाइज हम प्रीमाइस को ट्रू नहीं कर पाएंगे। प्रीमाइस को ट्रू नहीं होगी तो ये कंडीशन वैसे ही ट्रू हो जाएगी, लेकिन यदि प्रीमाइस ट्रू है तो कॉन्सिक्वेंस ट्रू होना चाहिए। इसको देखते हुए हमने इस पूरे प्रोसेस को किया है। सिमिलरली आप इन दोनों कंडीशंस को भी प्रूव कर सकते हैं, और जैसे ही हम इन दोनों कंडीशंस को प्रूव करते हैं हमारा का पूरा जो सवाल है वो प्रूव हो जाता है। इस तरीके से हम एक स्ट्रॉन्गर कंडीशंस को प्रूव कर पाने में ज्यादा समर्थ हैं, बजाय कि सिंपल कंडीशन को या सिंपल तरीके से चलने के। इस तरीके से हम मुझे लगता है कि आप इस प्रूफ को, जो बचा हुआ प्रूफ है, उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।